So I said that whosoever joined later. So I said that I had given a task to you, and these tasks were the videos, two videos particularly, backcross method part 1 of 27 minutes, and second video backcross method part 2 of about 37 minutes. So hopefully all of you have gone through that, and you could have the idea of backcross breeding. So so you might have seen that what is the use of backcross method. What is backcross breeding? You know that once you are crossing the F1 generation, F1 and onward generation with the recurrent parent. Why do you say recurrent parent in backcross breeding? A single variety or genotype you are using as a recipient, so that is called recipient also. The recurrent parent is also called. आप लोग कलम कागज पेन वगैरह लिए हुए होंगे, हमें उम्मीद है. So you are saying recurrent parent as well as you are saying recipient parent, whatever you say, the recurrent parent, because you are using in every generation you are using the recipient parent for transferring the gene of interest. So generally we are using this backcross method particularly in our breeding program for transferring some desirable traits which is lacking in our mega varieties or popular varieties. So for this, and also sometimes we are using to develop isogenic lines too. If you are interested to understand the functioning of a particular gene, so you can go for developing isogenic line for that particular trait, for that particular gene. You have to develop the isogenic line to study the functioning of that particular gene. So, but at larger scale, we are using this backcross breeding for transferring the desirable traits which are lacking in your commercial variety. Or you see that in sometimes the popular variety gets breakdown because of the new races coming in the environment and affecting and infecting your variety. So your variety is becoming susceptible for that particular the new races. So then you are searching the donors and you are trying to transfer the the gene of interest to your popular variety, because farmers are not going to replace that variety and they are getting problem of because of these diseases or insect pests or whatever. So you are interested to, because farmers are reluctant to replace that variety, but once that breakdown is coming because of the large scale infestation or infection, you can say, of that particular diseases or insect pests, so whole area is destroyed. So if it is not coming, that is a high yielding variety, farmers are happy. But once it is coming in any environment or any season, so your whole crop is destroyed. So farmers are saying, no sir, we will be growing this variety only, बस आप इसको ठीक कर दीजिए, ये रेसिस्टेंट हो जाए, डिजीज इसमें आना बंद हो जाए, तो हम लोग यही लगाएंगे. तो ऐसी स्थिति में, या कभी कभी हमारी वैरायटी
पॉपुलर हो जाती है फिर भी कुछ कमी रहती है। किसान कहते हैं सर कि ये 150 दिन ले रहा है पकने में, थोड़ा सा सर इसको 10 दिन कम कर देते तो हम इसको हम लोग यही लगाते, तो वो भी आप कर सकते हैं। या कभी कहते हैं कि सर वैरायटी तो बहुत अच्छी है, यील्ड भी बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन कभी कभी आंधी तूफान आता है तो थोड़ा प्लांट हाइट ज़्यादा है, इसको थोड़ा कम कर देते सर तो हम यही वैरायटी लगाएंगे। सो देन यू डू दैट। So for all these things you are using this backcross breeding program, and you see once you are using this breeding strategy, backcross breeding, to correct the defects or what, to incorporate some important trait in your popular variety. So usually what we do, we use the recurrent parent or recipient parent, whatever you say, as a female. We are using these parents as if these recipient as female. Why we are using as female? Because you know that mega spore is coming from female, and in mega spore you find some cytoplasm in which cytoplasmic genes are there. So for cytoplasmic inheritance or for cytoplasmic genes you will be requiring in your improved version also. So there should not be the contribution of cytoplasmic gene from the donors, which is not desirable. So in that case, in backcross breeding program you are using your recipient as female. But sometimes you don't have this opportunity to use your recipient parent as a female. Why? If you are interested to make your variety as a CMS line, then you are bound to use your recurrent parent as a male. I'll be dealing later all these things, but you keep in your mind that this is the problem at the time of transferring the cytoplasmic gene into your popular variety. If you are interested to make it cytoplasmic male sterile line, then you are bound to use it as a male in your breeding program, in your backcross breeding program. But in all other cases you are using this as a female. So hopefully you have gone through the videos and you must have got the idea of backcross breeding program. So whatever questions you are having, और आज थोड़ा जल्दी करेंगे हम लोग, 1:30 बजे तक ख़त्म करना चाहेंगे, 1 घंटे में। बहुत सारे काम आज है। अभी सुबह हमारी इरी फिलीपींस के साथ मीटिंग हो गई और 11th आवर पे हम लोग भागते भागते आए हैं किसी तरह से। 8 बजे इंफॉर्मेशन आया है कि वी आर हैविंग मीटिंग एट 10 o'clock. So late night they decided, and in the morning they have given the. So whole day we are busy today. तो मैं 1:30 बजे तक ही कर पाऊंगा। आप लोग जल्दी जो डाउट्स हैं आप अपना बता दें, जिससे कि हम लोग 1:30 बजे तक ख़त्म कर दें। और बी वेरी क्लियर, उसमें कहीं सोच विचार में नहीं पड़े। जो भी दिक्कत है आप एकदम लो लेवल से आप पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब बताएंगे हम। लेकिन आप अपने मन में मत रखिए बाद में कहे कि हमको तो नहीं समझ में आया, फिर बाद में हमें दुख होता है। बार बार मौका नहीं मिलता है। सर हाँ बेटा, नाम बताते जाइए और हम लिखते जाइए। राजशेखर। यस सर। हाँ बेटा राजशेखर, बताइए। सर व्हाट इज रिकरेंट पेरेंट एंड व्हाट इज आइसोजेनिक एंड नियर आइसोजेनिक लाइन? रिकरेंट पेरेंट, हाँ। आइसो ठीक है बेटा, ये हम वैसे बता चुके हैं लेकिन फिर से बता देंगे। आइसोजेनिक एंड नियर आइसोजेनिक, यही ना? ठीक है, ये हम बता चुके हैं लेकिन फिर से हो सकता है तुम क्लास में ना रहे हो। मैं फिर बता दूंगा। चलो हाँ, नेक्स्ट।
सर हाँ सर बेटा नाम बता दिया कि हमको दिख नहीं रहा इसमें। दिया दिया हाँ दिया बेटा बोलिए। वाटर रिस्टोरेंट लाइन्स। ठीक है बेटा, ठीक है, हाँ हो जाएगा। सर हाँ बेटा नाम बताइए बेटा। सर सर अभिलाष। अभिलाष। सर जो आपने डोमिनेट वाला बताया था, कैपिटल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर, इन दोनों को सेपरेट कैसे देखना है? अच्छा। रेजिस्टेंस कैसे देखना है? आपने जो सीजन B6 जो ग्रो किया था उसमें सेल किया था हमने। हाँ, ये हाँ। दोनों को अलग अलग ग्रो में ग्रो किया था। हाँ तो कैपिटल आर उसमें क्या था बेटा? आपने बोला था कि जो बहुत ज्यादा सिमिलर होगा पेरेंट के, उसको फिर हमें अलग से रखना, अलग से हार्वेस्ट करना है बल्क में। नहीं टेस्टिंग तो करना होगा ना, टेस्ट करके ही तो आगे बढ़ेंगे। कैपिटल आर आना चाहिए ना, आप डाउनलाइन चाह रहे हैं ना? तो उसको हमें कैसे अलग से देखना है? जो नहीं कैपिटल आर स्मॉल आर को आप सेल्फ करते हैं ना, तो कैपिटल आर स्मॉल आर यही आएगा ना। और फिर इसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों आपको पकड़ में आएगा, फिर सेल्फिंग करेंगे। फिर सेल्फिंग करेंगे। जो प्रोजनी वो होमोजीनियस हो जाएगी वही कैपिटल आर है। जो प्रोजनी होमोजीनियस नहीं होगी उसमें सेग्रीगेशन हो रहा है, वो कैपिटल आर स्मॉल आर रहेगा। समझ? तो सर मतलब हमें फिनोटाइपिकली भी देखना होगा क्या उसको? ट्रेंड से बहुत सिमिलर है। बेटा फिनोटाइपिकली तो देखना ही है ना। नहीं यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ, कैपिटल आर स्मॉल आर को जब आप सेल्फ करते हो तो प्रोजनी दो तरह की आएगी, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक ना? 1:2:1 रेशियो। तो उसमें बेटा उन सारे प्लांट्स को इंडिविजुअली फिर ग्रो करना है, प्रोजनी रो ना। तो जो प्लांट को इंडिविजुअली जब ग्रो करोगे तो उसकी जो प्रोजनी है, जिस प्रोजनी में आप देखोगे कि सारे प्लांट्स एक जैसे हैं, तो इसका मतलब वो कैपिटल आर है। और जिसमें वेरिएबिलिटी आ रही है वो कैपिटल आर स्मॉल आर है। और जो स्मॉल आर है उसको तो आप पहले से छाट दोगे, सारा स्मॉल आर जैसा दिखेगा वो तो पहले से छाट दोगे, वो छट जाएगा। तो आपको हम बैक क्रॉस ब्रीडिंग बताएंगे आगे कि आपको जब भी सिलेक्शन करना है वो ट्रू टू द टाइप, मतलब कि आपको बैकग्राउंड को देखते हुए करना है। हम बताएंगे क्या होता है, ठीक है? हाँ नेक्स्ट बेटा कौन बोल रहा? हाँ बोलिए। अंशुमान त्रिपाठी। अंशुमान, हाँ बेटा बोलिए। सर मेल स्टेराइल लाइन डेवलप करने का क्या? ठीक है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट शिल्पा सावंत। श्वेता, शिल्पा सावंत। शिल्पा, हाँ शिल्पा बेटा बोलिए। तो ये आपने बोला कि डोनर पेरेंट को हम हमेशा वो उसका मेल लेंगे क्योंकि हमें साइटोप्लाज्मिक जीन मेल चाहिए। हाँ बेटा, तो इसका रीजन क्या है? साइटोप्लाज्मिक जीन से क्या? ठीक। हाँ नेक्स्ट। हाँ बेटा रिपीटेड। नाम खुशी, एक मिनट, खुशी का ले लेते हैं। क्या रिकरेंट पेरेंट बेटा क्या बोली? रिपीटेड बैक क्रॉस ऑफ हाइब्रिड। रिपीटेड बैक क्रॉस ऑफ हाइब्रिड। हाँ ठीक है। नेक्स्ट बेटा बोलिए। हाँ बेटा कौन? दीपांजल। हाँ दीपांजल बोलो बेटा। सर मुझे ये समझ में आया सर बैक क्रॉस मेथड्स के सर मेरिट्स में सर मच स्मॉलर पॉपुलेशन इज रिगार्डेड एज वी सर मतलब रिक्वायरमेंट एज वी नीड अ सिंगल प्लांट। सर ये समझ में आया सर। क्या आपने एक बार बोला ना सिंगल पोलेंट से भी कभी कभार काम चल जाता है सर। तो सर मेरिट्स के सर बैक क्रॉस मेथड के मेरिट्स के सर थर्ड पॉइंट पॉपुलेशन इज रिगार्डेड थर्ड पॉइंट सर मच स्मॉलर पॉपुलेशन इज रिगार्डेड एज यू नीड अ सिंगल प्लांट सिंगल पार्ट ऑफ प्लांट। थर्ड पॉइंट में लिखा है? यस सर मैंने बोला है। हाँ बेटा क्रॉस करने के समय सर सीएमएस निकालते हैं तो सर जैसे बोलते हैं ना कि सर बहुत सा कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर होती है रिकरेंट में। तो सर एक तो आपने बोले सर वन पार्ट ऑफ द प्लांट विल ओनली वन इन बैक क्रॉस।
हाँ हाँ हाँ, हमें प्रश्न नहीं समझ पे आ रहा बेटा। अच्छा, तुम्हारा लास्ट में ले लेंगे हम प्रश्न, फिर से सोच। और ये वाला जो सर डिमेरिट्स में सर और सर एक डिमेरिट्स का पॉइंट क्लियर करना सर बाय द टाइम सर इन बैक क्रॉस सर डिमेरिट्स है सर पॉपुलर वैरायटी इज इंप्रूव दिस वैरायटी हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अदर सुपीरियर वैरायटी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट बोलो बेटा। नेक्स्ट कोई बोल रहा है? एनीवन प्लीज? सर आइसोजेनिक और नॉन आइसोजेनिक डिफरेंस क्या है? शिल्पा बोल, शिल्पा कौन बोल रहा है? तो शिल्पा सर। शिल्पा तुम पूछी थी ना अभी, हाँ सर। भूल गई थी। चलो, क्या किसमें अंतर है? सर आइसोजेनिक और नॉन आइसोजेनिक। ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन हो चुका है। एक मिनट, किसी ने किसी ने पूछा था। ठीक है, मैं फिर से वो कर दूंगा। हाँ, ये राजशेखर ने पूछ लिया है, शिल्पा में भी डाल देते हैं। हाँ चलिए, ठीक है। नेक्स्ट। सर 9th ईयर में सर जो हार्वेस्टेड प्लांट है तो उसे 10th ईयर में सर डबल रो में क्यों ग्रो करते हैं? बेटा वो नाम बताना। अभिषेक उपाध्याय। अभिषेक, अभिषेक तुमने एक क्वेश्चन और किया था ना? नहीं सर, वो किसी और अभिषेक ने किया था। हाँ, अभिषेक उपाध्याय। हाँ बताइए बेटा, क्या है 9th ईयर में? सर 9th ईयर में जो सर हम प्लांट से सीड हार्वेस्ट करते हैं सर उसे 10th ईयर में सर डबल रो में क्यों ग्रो करते हैं? सर लोग सिंगल रो में ग्रो कर सकते हैं, तो कोई रीजन है कुछ? ठीक है। कौन सा जनरेशन है वो? 9th ईयर में जनरेशन कौन सा है? सर BC6 सर बैक प्रोसेस। BC6। चलिए, ठीक है, ठीक है। और कोई? और बोलिए बेटा। यूजेस ऑफ बैक क्रॉस कौन? हाँ नाम बताइए बेटा। सर नाम? सर काजल शर्मा। काजल बेटा, हाँ बोलिए। काजल शर्मा। हाँ काजल शर्मा, बोलिए। सर वो मेल सर यूजेस ऑफ मेल स्टेरिलिटी लाइन क्या होगा? ठीक है, ठीक है। एक प्रश्न और आया था, उसमें क्लियर हो जाएगा आपको। हाँ सर। हाँ बेटा बोलिए। सर आपने एक टर्म बोला था MABB। कौन? आदिति बोल रही? यस सर। आदिति, हाँ बेटा, क्या टर्म बोला था? MABB उसका फुल फॉर्म क्या है? मार्कर असिस्टेंट बैकवर्ड स्टेजिंग। MABB, ओके। हाँ, ठीक है। इसको क्या है ये पूछना चाहती हो? हाँ सर। ठीक है, MABB, ठीक है। और कुछ? हेलो सर। हाँ बेटा बोलिए, नाम बोलिए। आदित्य। आदित्य, हाँ। सर जो बैक क्रॉस होता है लॉन्ग और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोसेस है उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं? बैक क्रॉस में जो लॉन्ग और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोसेस है उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं? बेटा आवाज साफ नहीं आ रहा है हमको, फिर से बोलो आदित्य। सर बैक क्रॉस में लॉन्ग एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जो उसका प्रोसेस है, लॉन्ग प्रोसेस बोलो ना। हाँ लॉन्ग प्रोसेस। हाँ लॉन्ग या डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब बार-बार रिपीट, हाँ उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं? मतलब मैनेज में क्या कहना चाहते हो? मैनेज ही तो करते हैं, मैनेज करके ही तो बनाते हैं हम आगे। आप उसमें और क्या मैनेज करना चाहते हो वो बोलो ना। ये ऐसे मतलब सर टाइम अधिक मिला तो तब कैसे कर? हाँ तो ये बोलो ना। तो मैनेज तो करके ही तो हम लोग वैरायटी बना रहे हैं। आप मैनेज नहीं, प्रश्न ठीक से पूछो कि सर इसको कम कैसे कर सकते हैं। हाउ कैन आई मेक शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ दिस। ये ठीक है बेटा, हम बताएंगे। सर हाँ बेटा, नाम बताइए। सारिका से। सारिका, हाँ बोलिए। सर आपने बोला था कि जैसे हमने एक वैरायटी बना ली स्वर्णा संपन्न,
किसी नई राइस में डालना है तो वो हम लोग उसके पेरेंट्स से ना डाल के स्वर्णा सपन से वो वाली चीज उसमें ट्रांसफर करें। हम बोले हैं सर वीडियो में आपने ऐसा बोला है कि कोई नई वैरायटी में भी अगर सपन जीन डालना है तो हम लोग उसको स्वर्णा सपन से ट्रांसफर करें। ओके। तो सर अगर हम लोग स्वर्णा सपन से करेंगे तो सर वो तो क्रॉस रिकरेंट पेरेंट और उसके पेरेंट के बीच में नहीं हुआ। स्वर्णा सपन जो है सर वो उसका पेरेंट तो पेरेंटल लाइन नहीं हुआ सर, वो बैकवर्ड कैसे हुआ? तुम्हारा ये कहना है कि स्वर्णा सबवन एज ए डोनर क्यों यूज करेंगे, यही ना? नहीं सर, स्वर्णा सपन अगर एज अ डोनर यूज करेंगे तो सर वो जो नई वैरायटी है वो उसका पेरेंट तो नहीं होगा ना। स्वर्णा सपन उसका पेरेंट प्लांट नहीं हुआ। स्वर्णा सबवन पेरेंट प्लांट हाँ नहीं होगा। हाँ तो क्या कहना चाहते हैं? बैकक्रॉस कैसे करें? नहीं, जो नई वैरायटी है उसमें चाहती हो कि वो सबवन जीन डालें, यही ना? हाँ। तो नई वैरायटी में सबवन जीन डालें तो उसमें सोना सबवन से डालने में क्या प्रॉब्लम है? सोना सबवन में तो सबवन जीन है ही, उसमें कोई दिक्कत है? तो सर वो तो आसान होगा ना फिर सेलेक्ट करने में ऑफस्प्रिंग, तो सर वो आसान मेथड है। लेकिन सर जो बैकक्रॉस का डेफिनेशन होता है कि F1 या फिर उसके सब्सिक्वेंट जनरेशन का क्रॉस वन ऑफ इट्स पेरेंट्स से होता है तो वो बैकक्रॉस होता है। हाँ, तो जो नई वैरायटी है उसी से बार बार करोगे क्रॉस तो बैकक्रॉस हो जाएगा। मॉडिफाइड बैकवर्ड मेथड में आ जाएगा सर। नहीं मॉडिफाइड में नहीं, ये डायरेक्ट बैकक्रॉस मेथड। दिस इज नॉट मॉडिफाइड बैकक्रॉस मेथड। हम बताएंगे बेटा आपको, सारिका तुमको डिटेल में बताएंगे, थोड़ा और लोगों को क्वेश्चन आ जाने दो। ओके सर। बोलिए, हो गया? है काजल, स्टार्ट करें तब? सर हमें लगता है अब सारे लोगों के प्रश्न इतने में आ जाएंगे, सारे लोगों के डाउट्स इतने में क्लियर हो जाना चाहिए, हमें लगता है। एक आध कुछ रह जाएगा तो फिर कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। लेट मी स्टार्ट फर्स्ट। राजशेखर, यस सर। आपने पूछा था रिकरेंट पेरेंट क्या है? यस सर। बेटा क्यों पूछा था इसको? रिकरेंट मतलब बेटा जो बार बार यूज होता है, हर जनरेशन में क्रॉसेस में यूज किया जाता है, जो वैरायटी वही रिकरेंट पेरेंट होता है और वही रिसिपिएंट भी होता है। इज इट क्लियर या इसमें कुछ और जानना चाहते हो? नहीं पता सही। यही ना, वो चूंकि हम बार बार यूज करते हैं उसी को, क्योंकि उसी को करेक्ट करना है ना, तो बार बार इसलिए यूज करते हैं कि हमारा बैकग्राउंड मिल जाए, बैकग्राउंड जितने जीन्स हैं सारे हमारे आ जाएं। बैकग्राउंड कौन सा है? जो हमारा रेसिपिएंट है। इसीलिए उसको बार बार रिकरेंट पेरेंट के रूप में यूज करते हैं कि उसी के सारे जीन्स हमें एट लास्ट हमारे सारे जीन्स उसके आ जाएं, इसलिए उसको रिकरेंट पेरेंट, रेसिपिएंट को ही रिकरेंट पेरेंट बोलते हैं। यही कारण है कि उसके सारे जीन्स हम डालना चाह रहे हैं, बार बार क्रॉस उसी से करते हैं जिससे उसके सभी जीन्स हमारे पास आ जाएं जब हम उसको मॉडिफाई करते हैं या जो भी कहो इम्प्रूव करते हैं। और दूसरा प्रश्न था आपका आइसोजेनिक और नियर आइसोजेनिक। तो ये मैं कई बार बता चुका हूं। आइसोजेनिक लाइंस, द टू लाइंस विच आर सेम बट डिफरिंग फॉर वन और फ्यू genes, okay, they are isogenic lines. नियर आइसोजन, हाँ बेटा बोलिए, कौन बोल रहा है? शिल्पा, हाँ वही पूछ
ठीक है सर, आइसोजेनिक का आप बताए थे कि 1 और 2 जीन्स मतलब डिफर करता है, तो उससे ज्यादा होगा तो एक अलग वेराइटी हो जाएगी। Yes. तो फिर वही पूछ रहे थे कि फिर नियर आइसोजेनिक लाइन क्या है? नियर आइसोजेनिक लाइन, अगर जैसे मक्के में आप इनब्रेड लाइंस वो सारा होमोजाइगॉसिटी अटेन नहीं कर पाते हैं, उसी तरह से उसको फिर नियर इनब्रेड लाइन बोलते हैं। उसी तरह से आप जब आइसोजेनिक लाइन तैयार करते हैं तो आप तैयार करते हैं केवल एक जीन के लिए। ठीक है, लेकिन बहुत सारे अनवांटेड जीन्स भी आ जाते हैं जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है, इसलिए हम कंप्लीट आइसोजेनिक लाइन नहीं बोल पाते हैं। अगर आप कर पाए तब तो ठीक है, नहीं तो आपको नियर आइसोजेनिक लाइन ही बोलना चाहिए। दैट आई वांटेड टू से। हो सकता है कि आपको आइसोजेनिक लाइन मिल जाए, लेकिन उसके साथ जो टाइटली लिंक्ड जीन्स हैं वो भी आ जाते हैं जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए उसको हम तभी आइसोजेनिक बोलेंगे जब हमारा एक ही जीन के लिए डिफरेंस 1 या 2 जीन के लिए डिफर कर रहा है। अगर 3-4 हाँ बोलिए। तो आप तो बोल रहे थे कि अगर वो क्लोजली लिंक्ड जीन्स मतलब अनडिजायरेबल जीन्स आ जाएगा तो उसको लिंकेज ड्रग बोलेंगे। हाँ, वो लिंकेज ड्रैग बोला जाएगा, लेकिन उस पेरेंट को थोड़ा लिंकेज ड्रैग बोला जाएगा। उस सिस्टम को उस चीज को हम लिंकेज ड्रैग बोलेंगे, उस पेरेंट को लिंकेज ड्रैग बोलेंगे थोड़ा, लेकिन पेरेंट को बोलने के लिए नियर आइसोजेनिक लाइन बोलेंगे। आइसोजेनिक लाइन एंड नियर आइसोजेनिक लाइन। और ड्रैग्स में unwanted genes, I mean the gene for which you are interested is coming along with some unwanted genes, tightly linked genes, which is creating problem, so they are drags. तो हम तो कहते हैं कि आइसोजेनिक लाइन हम बनाए हैं, जैसे स्वर्णा किसान कहते हैं हम नहीं छोड़ेंगे, हम वही लगाएंगे, लेकिन आपने सब1 जीन डाल दिया। सब1 जीन डालने के बाद आपको यू शुड से इट आइसोजेनिक लाइन, बट यू कैन नॉट से इट आइसोजेनिक लाइन। क्यों? क्योंकि आप देखिए स्वर्णा में कुछ वो मैच्योरिटी में डिफरेंस हो गया है, उसके कलर में कुछ डिफरेंस हो गया दाने के, सो सेवरल ट्रेट्स आर चेंज। ऑफ कोर्स मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेट्स आर लाइक स्वर्णा, सो दैट इज द आइसोजेनिक लाइन, बट नॉट कंप्लीट आइसोजेनिक, दैट इज नियर आइसोजेनिक। हाँ पूछिए शिल्पा, कोई बोल रहा है? शिल्पा तुम्हारा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ फिर? हाँ, ड्रैग तो सिस्टम हो गया ना, ड्रैग जीन्स तो सिस्टम हो गया। वो पेरेंट्स को बोलने के लिए आपको नियर आइसोजेनिक बोलना पड़ेगा। ठीक है। दिया ने पूछा था रिस्टोर लाइन क्या है। बेटा आगे पढ़ाया जाएगा डिटेल में, जब हम मेल स्टेरिलिटी पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या है, क्योंकि मेल स्टेरिलिटी में कई तरह के मेल स्टेरिलिटी हैं। एक है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी अगर कोई एक पेरेंट आपका है तो फीमेल के रूप में यूज होगा, और पॉलिनेटर मेल पेरेंट जिसको यूज करोगी दूसरी वैरायटी, इसके बाद जो हाइब्रिड बनेगा, मान लो राइस का है, तो हाइब्रिड जब बनेगा और हाइब्रिड जब आपने लगाया तो प्लांट का ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ, पेनकिल साइज बढ़ गया और नंबर ऑफ स्पाइकलेट्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं कि खूब दाना बैठेंगे। लेकिन यू सी दिस इज CMS फीमेल था, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टाइल, उसने थ्रो
मेगा स्पोर में साइटोप्लाज्म जो था वो उसके थ्रू डाल दिया, उसमें F1 में उसने मेल स्टाइल जीन डाल दिया और F1 जो है मेल स्टाइल हो गया। पहले तो किसान बहुत खुश था, वो हाइब्रिड आपने दिया, और जब इसके बाद जब वो लगाया ग्रोथ बहुत अच्छा था, टिलर्स खूब अच्छे हुए, खूब हरा पौधा दिख रहा था, प्लांट हाइट अच्छी थी, बालियाँ खूब लंबी लंबी थी, दाने खूब बालियों में दाने आई मीन स्पाइकलेट्स खूब था। इसके बाद सोच रहा था खूब दाना बैठेगा और एक भी दाना नहीं बैठा उसकी बाली में। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट फीमेल विच यू यूज्ड which was CMS and that has contributed through the megaspore the cytoplasm of that and has given the estriol gene in F1। तो किसान खूब खुश था। लास्ट में जाओगे तो फिर क्या होगा तुम समझ सकते हो, उसका हेक्टेयर्स एंड हेक्टेयर्स बर्बाद हो गया, एक भी दाना नहीं बैठा। तो बेटा ऐसे समय में हम लोग कुछ वैरायटी ऐसी खोजते हैं कि जिनमें न्यूक्लियस में ऐसा जीन हो कि वो उसको नलीफाई कर दे। जो साइटोप्लाज्मिक जीन है अगर उसके साथ आता है F1 में, और जो मेल की तरफ से अगर वो ऐसा जीन है मेल में, ऐसा मेल हम लोग खोजते हैं, वो जब F1 में जाए तो F1 के साइटोप्लाज्मिक स्ट्राइल जीन को नलीफाई कर दे, तो उस जीन को हम लोग रिस्टोर्ड जीन बोलते हैं। रिस्टोर्ड जीन मतलब फर्टिलिटी रिस्टोरेशन, द जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्टोरेशन ऑफ फर्टिलिटी इन द इंडिविजुअल प्लांट which is lost because of the this cytoplasmic male gene in F1. So in F1 you have restored because of the restored gene. So once restored gene, so you can understand that okay, the parent, male parent which I have used and I have got the F1 and that F1 is fertile, तो फार्मर्स खुश होंगे, चलो दाना भी खूब है, स्पाइकलेट्स भी खूब हैं, बालियां भी लंबी हैं और दाने भी सब बैठ गए। क्यों? क्योंकि उस सीएमएस जीन को जो मेल पेरेंट आपने यूज किया था उसमें रिस्टोर्ड जीन था और उसने उसको नलीफाई कर दिया। अब सारे प्लांट आपके फर्स्ट क्लास दाना बैठ रहे हैं उसमें। तो ऐसे मेल को हम लोग रिस्टोर्ड लाइन बोलते हैं जिनमें रिस्टोर्ड जीन होता है। दिया, इज इट क्लियर टू ऑल? नहीं तो पूछो। दिया, क्लियर हुआ? नहीं नहीं यस सर, धीमे से नहीं बोलो, ठीक से बोलो। क्लियर हुआ तो ठीक से बोलो, नहीं तो फिर से बताएंगे। ओके, औरों को क्लियर हुआ कि नहीं? राजशेखर, शिल्पा, सारिका, आप लोगों को क्लियर हुआ रिस्टोर्ड जीन क्या है? ओके, कौन? अभिलाष थे नेक्स्ट। उन्होंने कहा कि आपने बता दिया मेरा तो अच्छा हो गया था, क्लियर था। ओके, दैट्स गुड। अंशुमान, मेल स्टाइल क्यों डेवलप करते हैं, ये आपका कहना है? हैं? मेल स्टेरिलिटी तो नेचर में ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होता है, एंड यू नो दैट म्यूटेशंस आर डेलिटेरियस एंड नॉट रिक्वायर्ड, बट समटाइम्स जब नेचर दे रहा है तो इसको पढ़ा गया कि भाई क्या इसका कुछ यूज कर सकते हैं क्या हम। सो प्लांट ब्रीडर्स स्टार्टेड यूजिंग दैट, द गॉड हैज गिवन थ्रू स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, so we are using this induced mutation also to create male sterility. And why we are interested? That we have seen that when God has given something, there must be some reason of that. So we saw that yes, we can use it particularly for hybrid seed production in crops where you need large quantity of seed. So manually it is not possible to produce the hybrid seed in crops like in cereal crops, particularly like your rice
or maize or mustard, whatever. But in some vegetables like tomato and brinjal and other things, where you are touching one bud, you are getting hundreds and hundreds hybrid seed, and you require very less quantity of seeds per unit area. But where you require large quantity of seed, and if you are touching one spikelet and you are pollinating one spikelet, you are getting only one seed, and you are requiring per unit area larger quantity of seed. So you cannot produce hybrid seed to provide to farmers hybrid seed every year, because hybrid seeds have to be replaced every year. Farmers may not reuse their own seed, their own produce of hybrid as a seed. So you have to provide them the hybrid seed every year. So for that, since God has given something that has been utilized by the breeders, so male sterility is required. If it is not available, we are transferring. If it is not available, we are inducing through induced mutation. अंशुमन, हमें लगता है क्लियर है. यस सर, क्लियर. शिल्पा, डोनर मेल क्यों लेते हैं? हाँ शिल्पा, हाँ सर, यही प्रश्न पूछ रहे थे कि आप बोले कि डोनर हमेशा उसका मेल लेंगे, क्योंकि साइटोप्लाज्मिक ट्रांसफर हो जाएगा फीमेल लेने से. हाँ हाँ, जो कि हमें नहीं है. तो सर साइटोप्लाज्मिक क्यों हमें नहीं चाहिए? क्यों चाहिए? इसलिए नहीं चाहिए कि वो एक बार अगर क्रॉस कर दोगी तो उसी का साइटोप्लाज्म हमेशा आता रहेगा अंत तक. जो है, जब आपका इंप्रूव्ड वर्जन आएगा ना, जैसे स्वर्णा है, स्वर्णा का सब वन जीन ट्रांसफर करने के लिए हमने डोनर को एज ए मेल यूज किया और स्वर्णा को एज ए फीमेल यूज किया, तो स्वर्णा के सारे ट्रेड्स हमारे आ गए लास्ट में. नहीं तो प्रॉब्लम होता कि जो उसके डोनर हैं उनका जीन लास्ट तक रह जाता, जो आपको चाहिए नहीं. आपको उसके न्यूक्लियस का जीन चाहिए था, एक ही जीन चाहिए था, वो आपने ले लिया. अब उसकी क्या जरूरत है? उसके साइटोप्लाज्म में बहुत सारे बेकार जीन होंगे जो आपको चाहिए नहीं. क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि आपको सारा जीन, विदर साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर जीन, ऑलमोस्ट ऑल जीन्स यू आर रिक्वायरिंग फ्रॉम स्वर्णा. तो आप दूसरे का क्यों लेंगे? आपको किसान तो कहेगा नहीं आपने बदल दिया, हम नहीं लेंगे, ये स्वर्णा नहीं है. तब क्या करिएगा? शिल्पा, इज इट क्लियर और समथिंग मोर यू आर? क्लियर हो गया. खुशी, रिपीटेड बैक क्रॉस ऑफ हाइब्रिड, क्या कहना चाह रही थी? जो भी हाइब्रिड आएगा उसको फिर बैक क्रॉस करेंगे, उसी को रिपीटेड बैक क्रॉस कहते हैं. हर बार जो हाइब्रिड, जो क्रॉस किया हाइब्रिड आया, फिर बैक टू रिकरेंट पेरेंट, फिर जो हाइब्रिड आया बैक टू रिकरेंट पेरेंट. हाँ, बैक क्रॉस में ये आपको जरूर ध्यान देना है कि प्लांट वही आप सेलेक्ट करिए जिस जीन के लिए आप ट्रांसफर कर रहे हैं, वो जीन उस प्लांट में होना चाहिए, प्लस वो प्लांट मोर क्लोजर इन phenotype that should be seen that this is more closer in phenotype to your recurrent parent, to your recipient parent, to which you are improving. इसलिए रिपीटेड बैक क्रॉस बोलते हैं बेटा हाइब्रिड्स का. खुशी, इज इट क्लियर? यस सर. ठीक है, दैट्स गुड. दीपांजल, दीपांजल, आपका क्वेश्चन हमको क्लियर नहीं हो पाया था. डिमेरिट्स में पॉपुलेशन क्या आप पूछे थे, नहीं समझ में आया. चलिए फिर से इसका करेंगे. अभिषेक उपाध्याय, BC 6 में डबल रो में क्यों लगाएंगे? डबल रो में अब यह है कि अब इसके बाद आपको आगे इम्प्रूव्ड वर्जन फाइनल हो गया है. डबल रो में लगा के आपको क्लियर हो जाएगा, और सीड भी आपको ज़्यादा चाहिए क्योंकि अब सीड प्रोडक्शन भी करना है और टेस्टिंग भी करनी है, इसलिए आपको डबल रो में लगाना शुरू करते हैं, और कोई बात नहीं.
अभिषेक, ठीक है। Yes. ओके, काजल शर्मा, यूज ऑफ मेल स्टेरिलिटी हमने बता दिया। काजल, ये तो क्लियर हो गया। अंशुमन ने पूछा था जो, काजल चली गई, इसका हो गया क्वेश्चन। आदिति, एमएवीबी क्या है, ऐसा पूछ रही हो? एमएवीबी तुमने तो बता दिया, मॉलिक्यूलर असिस्टेड बैक क्रॉस ब्रीडिंग है। फुल फॉर्म क्या है, बट श्योर ड्यू टू फंक्शन वही है, आपको क्या आप बता दें। ओके ओके, आदिति ने बताया कि मॉलिक्यूलर असिस्टेड बैक क्रॉस ब्रीडिंग, इसमें क्या होता है कि कई साल हम लोग फास्ट हो जाते हैं बैक क्रॉस ब्रीडिंग में। अगर मॉलिक्यूलर मेथड से हम लोग वो करें, सिलेक्शन करें, जैसे आपने क्रॉस बनाया तो हम लोग हाइब्रिड वहाँ तो देखेंगे ही फील्ड में, उसकी हाइब्रिडिटी टेस्ट कर लेते हैं, उसका डीएनए आइसोलेशन करके मार्कर के साथ रन करके हम लोग उसका देख लेते हैं कि वो हाइब्रिड है कि नहीं है। इसके बाद फिर हम लोग आगे जब बढ़ते हैं, बैक क्रॉस करते हैं, बैक क्रॉस करके फिर जब उसको BC1 लगाते हैं, फिर हम लोग डीएनए आइसोलेट करके आगे मॉलिक्यूलर मार्कर से उसको टेस्ट कर लेते हैं कि आपका वो सारे प्लांट्स में, जिस प्लांट्स को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, उनका वो फोरग्राउंड बैकग्राउंड, ये दो तरह का हम लोग वो मॉलिक्यूलर मेथड से हेल्प लेते हैं। उससे ये पता चलता है कि जो डोनर का जीन है जिसके लिए आप इंटरेस्टेड हो वो आया कि नहीं, जिस प्लांट को आप सेलेक्ट कर रहे हैं, या उस प्लांट को ही सेलेक्ट करेंगे जो आपके मॉलिक्यूलर मेथड से बताएगा, एंड मैक्सिमम बैकग्राउंड जीन आ रहे हैं कि नहीं। तो जिस प्लांट में मैक्सिमम बैकग्राउंड जीन, आप तो ऐसे फिनोटाइप से भी सिलेक्शन करते हैं, लेकिन आप बैकग्राउंड सिलेक्शन मॉलिक्यूलर मेथड से भी कर लेते हैं तो फास्ट हो जाता है, जल्दी आपको रिकरेंट पेरेंट के बैकग्राउंड जीन्स मिल जाते हैं और आप BC6 तक जाने की जरूरत नहीं होती है। BC2 BC3 तक ही हम लोग काम कंप्लीट कर लेते हैं। तो यही हुआ मॉलिक्यूलर असिस्टेड बैक क्रॉस ब्रीडिंग, जो हम लोग कन्वेंशनल ब्रीडिंग करते थे। अब उसकी ज़रूरत नहीं इतना लंबा जाने की। आपके पास अगर सुविधा है, आपके पास लैब है, आप कर सकते हैं इसको, तो आप फास्टन कर देते हैं बैक क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम को। सो नाउ वी आर द कन्वेंशनल ब्रीडर्स आर यूजिंग दिस मॉलिक्यूलर असिस्टेड बैक क्रॉस ब्रीडिंग so that you are decreasing the number of generations required for improving your commercial variety. Is it clear, Aditi? नहीं क्लियर हुआ? आदिति वर्मा, ओके, दैट्स गुड। हाँ, नहीं क्लियर है ना? हमें लगता आदित्य ने भी जो कुछ क्वेश्चन पूछा है वो भी क्लियर हो गया इसी से। लॉन्ग प्रोसेस ऑफ रिपीटेड ब्रीडिंग को कैसे हम ठीक कर सकते हैं, ऐसे ही ठीक कर सकते हैं वो आदित्य। ठीक है, हमें लगता है तुम्हें आंसर मिल गया। ओके, देन सारिका वाज आस्किंग Swarna Subone, व्हाई वी यूज Swarna Subone एज अ डोनर। फिर ये बैक क्रॉस ब्रीडिंग कैसे हुआ? तो बेटा हमारा ये कहना है कि पहली बार तो आपको जब मान लो, ये तो Swarna Subone की बात है, मान लो कोई भी ट्रेट या Swarna में भी कौन सा वो हमने कहा था ना, बताया होगा उसमें Swarna Subone जीन का जो डोनर है, देखो ध्यान आगे बताएंगे, मैंने लगता है वीडियो में बताया हूँ पिछले। तो वो आप अगर वाइल्ड रिलेटिव्स या लैंड रेसेस यूज करते हैं, तो लैंड रेसेस या वाइल्ड रिलेटिव्स के इनके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि बहुत सारे ड्रैग्ड जीन्स होंगे, पुअर इल्डर है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। तो जब आप उनको लाते हैं, उनसे क्रॉस करते हैं, तो उनको हटाना बड़ा मुश्किल होता है और ट्रू आइसोजेनिक लाइन फिर लास्ट में लाना बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, ड्रैग्स बहुत आ जाते हैं।
तो once you are fortunate, once you have got in one variety, you have improved through back cross breeding, you have introgressed required gene. So why you are going to use again that land race or wild relative as a donor? Don't use that, because in improving other varieties, in improving other new varieties, अगर कोई नई वैरायटी में कोई प्रॉब्लम आ गया और अच्छी वैरायटी पॉपुलर हो गई, तो उसमें कोई डिफेक्ट, जैसे सबवन की बात ही करो, तो डिफेक्ट को ठीक करना है तो उसको फिर उस लैंड रेस को क्यों यूज़ करना है? अब तो हमारे पास है वो जीन अच्छी वैरायटी में, अच्छी वैरायटी को एज ए मेल हम लोग यूज़ करेंगे डोनर, तो जो प्रोजनीज आएंगी वो अच्छी रहेंगी, और धीरे धीरे जो आपके ख़राब ड्रैग्स आते थे उसके वो नहीं आएंगे इसमें, और आप अच्छा आइसोजेनिक लाइन तैयार कर लेंगे। यही कारण है बेटा कि हम लोग जब एक बार इंट्रोग्रेस कर देते हैं जीन, तो फिर उसी को जो इम्प्रूव्ड वर्जन है उसी को यूज़ करते हैं फिर अपनी वैरायटी इम्प्रूव करने के लिए। तो बैकक्रॉस ब्रीडिंग तो कहेगा ही, इसमें कोई यू कैन नॉट से कि ये बैकक्रॉस ब्रीडिंग नहीं है। सारिका, आर यू क्लियर विथ योर डाउट्स और यू नीड समथिंग मोर? यस सर। ठीक है सर बस वही मुझे पहले वाले क्रॉस का डाउट था सर, जब पहला क्रॉस कराएंगे किसी वैरायटी का स्वर्णा सबवन से, तो सर वो वाला क्रॉस तो बैक क्रॉस नहीं हुआ। तो वो भी बैकक्रॉस ही है ना, कैसे नहीं होगा? सोना सबवन आया कैसे? बिना बैकक्रॉस का थोड़ा आया है। सारिका, अपने वाली वैरायटी में वो बैक क्रॉस से आया है सर। किसी X1 वैरायटी में अगर हम लोग सबवन डाल रहे हैं स्वर्णा से, किसमें? सर वो उसका जैसे किसी भी X वैरायटी सर, कोई भी मेगा क्रॉप की वैरायटी। नहीं सारिका, आई थिंक यू आर कंफ्यूज सो मच। लेट मी से वन थिंग, एनी पॉपुलर वैरायटी if is having something, say any defect, if you are going to correct the defect, this is the only process, the back cross method, to correct the defect. And now facility is available that you can use MABB, molecular assisted back cross breed, but back cross is there, that you have to use. So this is all. इसमें और क्या कहना चाहती हो तुम बताओ? इसमें ज्यादा कंफ्यूज ना करो, इसमें और तुम कहना क्या चाहती हो? यू पिन पॉइंट द प्रॉब्लम। सारिका, इसमें तुम अब पहला जो क्रॉस होगा, अरे पहला दूसरा चौथा का बात मत करो ना, यू डोंट टॉक अबाउट पहला दूसरा। व्हाई आर यू सेइंग पहला दूसरा तीसरा? अरे कोई भी वैरायटी आ गई पॉपुलर है और उसमें कोई डिफेक्ट आ गया तो उसमें तुमको करना होगा, तो उसमें पहला दूसरा क्या होता है? उसमें क्यों पहला दूसरा बोल रही हो ना तुम पहला का क्या कहना चाहती हो बताओ? पहला का मतलब क्या कहना चाह रही हो सारिका? अरे भाई, फर्स्ट क्रॉस सेकंड क्रॉस मत बोलो ना, अलग अलग क्रॉसेस हैं। अगर हमें दो वैरायटी इंप्रूव करनी है तब बताओ। हमें मान लो ये पूसा बासमती 1 में भी हमें डालना है स्वर्ण ये सबवन जीन, और जो सबवन का डोनर है उससे हमने पूसा बासमती 1 को भी क्रॉस करा दिया, और उससे डोनर से हमने सोना को भी क्रॉस करा दिया, और सोना से क्रॉस करा के बैक क्रॉस करते करते हम सोना सबवन बना दिए। अब पूसा बासमती को बैक क्रॉस करते हुए पूसा बासमती सबवन बना दिए। अब इसमें तुम क्या कहना चाहते हो जरा बताओ तो? अब इसमें पहला दूसरा जरा बताओ, हमें क्या कहना चाह रही हो? सारिका चली गई। अब इसमें पहला दूसरा हमें बता दो, क्या चीज पहला क्या चीज दूसरा है? हेलो, यस सर। अब इसमें बेटा थोड़ा सा हमें बता दो, पहला दूसरा क्या हुआ इसमें? व्हाट इज पहला, व्हाट इज दूसरा? अब चुप हो जा रही हो। अब इसमें तुम क्या पहला दूसरा क्या कहना चाहती हो? बोलो ना हमें। नहीं बोलेगी। कोई दूसरा बच्चा बोले कि आदित्य बताओ ये क्या कहना चाह रही? सारिका, ये बस मैं बोल रही थी सर, जो हम लोग फर्स्ट मतलब पहली बार क्रॉस करेंगे। हाँ पहली बार या पहले साल बोलो ना,
पहले साल हमने दोनों को क्रॉस कर दिया, स्वर्णा को हमने वो डोनर से कर दिया और पूसा बासमती को भी डोनर से कर दिया। पहले साल हमने ये दोनों क्रॉस बना दिया। हम चाहते हैं दोनों को एक साथ इंप्रूव करना। अब बताइए आदिति। सर तो ये मूव से क्रॉस करवाएंगे तो वो बैक क्रॉस नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे, तो कैसे बनेंगे? अरे भाई हमने पूसा बासमती 1 का डोनर से क्रॉस करा के F1 लिया और फिर उस F1 को मैं फिर पूसा बासमती 1 से क्रॉस कर दिया और दूसरा क्रॉस मैंने स्वर्णा का क्रॉस डोनर से किया, फिर F1 आया जो F1 को फिर बैक क्रॉस कर दिए हम स्वर्णा से। तो 20 बैक क्रॉस 1 पहला क्रॉस का और दूसरे क्रॉस का बैक क्रॉस 1, दो वैरायटी एक साथ हम ले चल रहे हैं इंप्रूव करने। अब इसमें क्या आदिति इसमें क्या कहना चाहती है सारिका, बताओ। सर ये होगा बैक क्रॉस, सर पता नहीं उसको और क्या होगा। अच्छा जाने दो, छोड़ो, वो अपने से समझेगी बाद में। इसको फिर बैक क्रॉस करते करते लास्ट में इंप्रूव कर पाएंगे ना पूसा बासमती 1 को। उसी तरह से स्वर्णा को लास्ट में जब इंप्रूव हो जाएगा तो उसको पूसा बासमती सब 1 कहेंगे और उसको स्वर्णा सब 1 कहेंगे। यही तो करना है। और करना क्या है, जो भी वैरायटी क्रॉस करें वो नया क्रॉस होगा कि उसमें 1 और 2 थोड़ा होता है कुछ। हाँ ठीक है, और कुछ कहीं कोई किसी को कोई कंफ्यूजन? और किसी को कोई कंफ्यूजन? हमें लगता है 1:30 बज गया। अब हमें क्लोज करना चाहिए। Should I close now? कोई नहीं बोलेगा। अभिषेक नहीं बोलोगे? हैं? यस सर। क्लोज कर सकते हैं ना? अब कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। ओके ओके, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। आई एम क्लोजिंग नाउ। हेलो।